Students, in the previous video, we have discussed the topic maxima and minima, and we have studied the concept of local maxima, local minima, and point of inflection, and then absolute maxima, absolute minima, and to find out the values of local minima and local maxima, we have studied first derivative test and second derivative test. Okay, so now we are doing some more question on local maxima and local minima with the help of first derivative test and second derivative test. So in this particular question, we will understand the process of first derivative test and second derivative test both in this question. Okay, so now see the question. Find the points of local maxima, local minima, and point of inflection of the function, this one. So this function is given, so first we will write the function over here, x to the power 5 minus 5x to the power 4 plus 5x cube minus 1. Okay, for this function, and also find the corresponding local maximum and local minimum value. That local maximum and local minimum value is nothing but the maxima and minima. Okay, so now with the help of first derivative test, okay, how we will solve this question. So in the previous video we had discussed the first derivative test, and what was the first derivative test? At the first step, differentiate the function, then put equal to 0, find the critical points or extreme points we can say, and then allocate the points on the number line, then check the sign of f dash x. Okay, and then the identification steps for positive to negative shifting or negative to positive shifting or the same point shifting. Okay, so first we need to calculate f dash x. So f dash x for this function will be, okay, so the differentiation of the function, so it will be 5x to the power 4 minus 20x cube plus 15x square. Okay, and then minus 1 will be 0. So this is f dash x. Now we need to put that f dash x is equal to 0. So 5x to the power 4 minus 20x cube plus 15x square is equal to 0, and here we will write f dash x is equal to 0. Okay, so now we can take 5x square as common, so it will be x square minus 4x plus 3 is equal to 0. Now when you will solve this quadratic equation, then you will get x minus 3 and x minus 1 is equal to 0. Now when you will solve this, then you will get x is equal to 0. When you will solve this, then you will get x is equal to 3 and x minus 1 is equal to 0. So you will get x is equal to 1. Therefore that extreme points, or we can say critical points, will be 0, 1 and 3. So x is equal to 0, 1 and 3 will be the extreme points. Now what we have to do right now, that we have to put these points on number line, because we are solving this question with the help of first derivative test. So see, this is the number line. Now 0, 1 and 3. This is minus infinite plus infinite. So the whole number line is divided into 4 parts. Okay, now see, we have to check the sign of f dash x, okay, on these points. So what we will do, that f dash x is equal to
you can write here as step 1 step 2 like this, otherwise no need to do that. F dash x is equal to fx to the power 4 minus 20x cube plus 15x square. So when you will take 0 here, then these all values will be 0. Okay, so f dash 0 will be there. Okay, now what you need to do that, अभी आपको यहाँ पर 0 से माइनस इनफाइनाइट के बीच का कोई पॉइंट लेना है. ओके, सो 0 से इनफाइनाइट के बीच में कोई आप पॉइंट लोगे तो आप लोगे -1. ओके, सो f dash -1 is equal to -1 to the power 4, 20 minus 1 to the power 3 plus 15 minus 1 square. Okay, when you will solve it, then you will get plus 40. Okay, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको plus 40 वैल्यू मिलेगी, और plus 40 वैल्यू से यहां आ जाएगा पॉजिटिव साइन. ओके, नाउ द नेक्स्ट, अब आपको 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू लेना है और वहां पर f डैश x का साइन चेक करना है. सो 0 से 1 के बीच में तो 1/2, 0.5 1/2 ही हो सकती है. सो f डैश 1/2 इज इक्वल टू 5 1/2 टू द पावर 4 minus 20 1/2 क्यूब प्लस 15 1/2 स्क्वायर. ओके, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये पूरी वैल्यू बनेगी 5 इंटू 1/16 माइनस 20 इंटू 1/8 प्लस 15 इंटू 1/4, एंड व्हेन you will solve it, then you will get 65 minus 40 upon 16 is equal to 15 upon 16, and the sign will be positive. So यहाँ भी आपको पॉइंट मिलेगा, वो पॉजिटिव साइन मिलेगा. अब आप नेक्स्ट पॉइंट के लिए करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व. देखिए, नाउ f डैश, अब आपको 1 से 3 के बीच की कोई वैल्यू लेना है तो आप 2 ले लेंगे. ओके, when you will put 2 here between 1 and 3, so the equation, so the value will be 5 to the power 4 minus 20 2 cube plus 15 2 square, and when you will solve it, then you will get minus 40. Okay, so negative sign. So here we will get the negative sign, and when we will take between 3 and 4, 3 and infinite any value, then we can take 4 here. So f dash 4, जब आप f dash 4 को सॉल्व करोगे 20 into 4 cube plus 15 into 4 square, so you will get the value plus 240. Okay, so again you will get positive sign here. So in the first derivative test, you have to check the sign in the class intervals. अब जब आपके सभी साइन चेक हो चुके हैं तो अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अब आपको स्टेप में आइडेंटिफिकेशन स्टेप करना है. 4th स्टेप में आपको क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन स्टेप. देखिए, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं आपके लिए कि आपने फर्स्ट स्टेप में क्या किया. आपने फर्स्ट स्टेप में f डैश x निकाला, फिर f डैश x को 0 पुट किया, ये फर्स्ट स्टेप थी. फिर आपको यहाँ क्रिटिकल पॉइंट्स मिले, एक्सट्रीम पॉइंट्स मिले, ये यहाँ तक फर्स्ट स्टेप है. फिर सेकेंड स्टेप में आपने इन्हें नंबर लाइन पर एलोकेट किया, इन पॉइंट्स को. ठीक है, फिर आपने चेक किए, ये थर्ड स्टेप है. जब आपने इनके साइन चेक किए तो अब ये थर्ड स्टेप में आप इन क्लास इंटरवल्स में साइन चेक कर चुके हैं,
नाउ फोर्थ स्टेप जो है वो आइडेंटिफिकेशन स्टेप है। अब आइडेंटिफिकेशन स्टेप में हम क्या करेंगे, देखिए आइडेंटिफिकेशन स्टेप जो होगी उसमें फोर्थ स्टेप में यहां देखिए ये 0 पॉइंट सेंटर में है और 0 के लेफ्ट हैंड साइड पर और 0 के राइट हैंड साइड पर साइन जो है वो पॉजिटिव से पॉजिटिव यानी सेम साइन चेंज हो रहा है, मतलब साइन चेंज नहीं हो रहा है, सेम साइन है। और जब सेम साइन होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में तो वो क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, सेम साइन। तो हम यहां पर लिखेंगे सिंस साइन इज सेम on both side of 0, therefore x is equal to 0 is point of inflection। ठीक है, ये तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया। अब आप यहां देखिए 1 पॉइंट जो है उसमें साइन पॉजिटिव टू निगेटिव चेंज हो रहा है, और जब पॉजिटिव टू निगेटिव चेंज होता है तो आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि पॉजिटिव मतलब वैल्यू बढ़ रही है और निगेटिव मीन्स वैल्यू कम हो रही है। तो पॉजिटिव से निगेटिव मतलब बढ़ते हुए फिर वैल्यू का कम होना यानी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा देगा। ठीक है, यहां पर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, सिंस साइन इज changed from plus to minus for x is equal to 1, therefore x is equal to 1 is point of maxima। और ये कैसे होगा, ये देखिए ये 1 है, ये पॉजिटिव साइन है, ये निगेटिव साइन है, ये पॉजिटिव टू निगेटिव चेंज हो रहा है, ऐसे पॉजिटिव मतलब बढ़ रहा है और निगेटिव मतलब कम हो रहा है। तो ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। ठीक है ना, अब आप देखिए 3 के लिए निगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है, साइन जो हो रहा है वो निगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है, इसलिए पॉइंट 3 जो होगा वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। कैसे, वो देखिए, सिंस साइन इज चेंज्ड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव फॉर x is equal to 3, therefore x is equal to 3 is point of minima। देखिए ये निगेटिव, ये 3 और ये पॉजिटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है और निगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है मतलब पहले निगेटिव यानी वैल्यू डिक्रीज हो रही है और फिर पॉजिटिव यानी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इसलिए ये जो होगी ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। ठीक है, सो देखिए इन द क्वेश्चन फाइंड द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो है वो x इज इक्वल टू 0 पर मिला, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा जो है वो x इज इक्वल टू 1 पे मिला और पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा जो है वो x इज इक्वल टू 3 पर मिला। इन क्वेश्चन ऑल्सो फाइंड द कॉरेस्पॉन्डिंग लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू। अब हमें इसके रिगार्डिंग लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू भी निकालनी है। तो जब हमें पॉइंट मिल चुका है तो फिर अब वैल्यू तो हम निकाल ही सकते हैं। ठीक है, कैसे, देखिए फंक्शन में वैल्यू रख के फॉर लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या है x to the power 5
माइनस 5x टू द पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 1। सो एफ ऑफ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा क्या है, 1 है, तो हम यहाँ पर 1 वैल्यू रख देंगे। ठीक है, सो जब आप 1 रखेंगे तो 1 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 1 यानी 0 आ जाएगी वैल्यू। और फॉर लोकल मिनिमम वैल्यू, तो लोकल मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगी, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा से, और पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा क्या है, 3 है। सो एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 5 माइनस 5 इंटू 3 टू द पावर 4 प्लस 5 इंटू 3 क्यूब माइनस 1। सो when you will solve it, then you will get minus 28. Okay, so minus 28 is the minimum value and 0 is the maximum value. So final answer क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ function will be 0 and minimum value of function will be minus 28। ठीक है, अब यहां पर लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू ये एक ही बात है। ठीक है, अब देखिए इसी क्वेश्चन में अगर हम इसे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करें तो क्या क्या चेंजेस आएंगे वो देख लीजिए आप। देखिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, वो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है, सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालिए, उसे 0 के इक्वल करना है, एक्सट्रीम पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो यहां तक तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जैसा ही है, मतलब इस क्वेश्चन में हमें x इज इक्वल टू 0, 1 और 3 जो है वो क्रिटिकल पॉइंट्स मिल चुके हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स। अब फाइंड एफ डबल डैश एक्स, यहां से चेंज आएगा, तो एफ डबल डैश एक्स निकालने के बाद वो जो एफ डबल डैश एक्स निकलेगा सेकेंड डेरिवेटिव, उसमें ये 0, 1 और 3 जो अभी हमने क्वेश्चन में निकाले हैं ये हमको पुट करके और उसके साइन चेक करना है, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, मिनिमा है या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो ये जो चेंज है ये मैं आपको बता देता हूं कि इस क्वेश्चन में हमें पॉइंट्स तो 0, 1, 3 मिल चुके हैं, यानी सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट की ये फर्स्ट स्टेप तो ये रही। अब सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, देखिए सेकेंड स्टेप में सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए आप सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे कि एफ डैश एक्स तो आपके पास है 5x टू द पावर 4 माइनस 20x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर, ये आपके पास एफ डैश एक्स है पहले से। ठीक है, अब आप एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे। ठीक है, सो एफ डबल डैश एक्स विल बी 5 4 जा 20x क्यूब माइनस 60x स्क्वायर देन प्लस 30x। ओके, अब एफ डबल डैश एक्स में एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू निकालनी है x इज इक्वल टू 0 पर। तो जब आप x इज इक्वल टू 0 पर वैल्यू निकालेंगे तो यहां देखिए 0 0 0, जब आप वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, फिर वैल्यू 0 के इक्वल आएगी। और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में हमने कल देखा था कि सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में हमने देखा था कि जब वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए तो गो टू द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो आप हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ऑलरेडी कर चुके हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से फिर जब ये 0 के इक्वल आ जाता है तो क्या हो जाता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हम करेंगे, अगर ये 0 आ जाता है तो हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे जाना पड़ेगा।
फिर हम एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू x इज इक्वल टू 1 पर चेक करेंगे। तो ये एफ डबल डैश एक्स है, इसकी वैल्यू 1 पर जब हम चेक करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 20 माइनस 60 प्लस 30, इट मीन्स -10। और अगर ये -10 आई है, निगेटिव वैल्यू आई है, तो आपको कल बताया था, याद रखना मैंने, कि निगेटिव पीपल हैव मैक्सिमम प्रॉब्लम इन लाइफ, इट मीन्स इट इज लेस देन 0। और ये क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा। निगेटिव पीपल हैव मैक्सिमम प्रॉब्लम इन लाइफ। फिर एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू x इज इक्वल टू 3 पर निकालिए। सो इट विल बी 3 क्यूब माइनस 63 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 30 इंटू 3। जब आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो आपकी ये वैल्यू आएगी +90, और +90 इज ग्रेटर देन 0 है, और +90 जब ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव पीपल हैव लेस प्रॉब्लम और मिनिमम प्रॉब्लम इन लाइफ, सो इट विल बी पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो देखिए x इज इक्वल टू 3 आपको पॉइंट ऑफ मिनिमा फर्स्ट डेरिवेटिव में भी मिला था, और x इज इक्वल टू 1 आपको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा फर्स्ट डेरिवेटिव में भी मिला था, और x इज इक्वल टू 0 जो है वो आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिला था। यानी सेकंड डेरिवेटिव में और फर्स्ट डेरिवेटिव में यही है कि कल आपको मैंने कहा था कि सेकंड डेरिवेटिव से क्वेश्चन थोड़ा सा इजी बन जाता है। आपको वहां सारे फर्स्ट डेरिवेटिव में जो साइन आपको चेक करने होते हैं एफ डैश एक्स के, वो वाली प्रोसेस आपको यहाँ नहीं करनी पड़ेगी। अब जब आपको यहाँ पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा आपको पता चल चुका है, तो अब आपको क्या करना है, अब जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव में आपने फंक्शन की वैल्यू लास्ट में निकाली थी, वैसे ही आपको यहाँ पर भी ये फंक्शन की वैल्यूज, यहाँ पर ये आपने साइन चेक किया था, फिर आपने यहाँ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमम वैल्यू के लिए एफ ऑफ एक्स में फंक्शन में वैल्यू रखी थी। यही प्रोसेस आपको सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में करके अब आप 1 और 3 पुट करके ये सेम वैल्यू 0 और -28 निकाल लेंगे। जो चेंज था, जिन स्टेप्स का चेंज था, वो मैंने आपको बता दिया। वन मोर क्वेश्चन, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ फंक्शन -x + 2 sin x on this closed class interval 0 to 2 pi, and also find local maximum and local minimum value. Okay, now अब इसे हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से करेंगे, बिकॉज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में हम डिफरेंस समझ चुके हैं, और सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट हर क्वेश्चन के लिए थोड़ा इजी होता है, इसलिए सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से करेंगे इसे हम। सो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप, आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप करेंगे एफ ऑफ एक्स -x + 2 sin x जो फंक्शन है उसका आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे एफ डैश एक्स, एंड इट विल बी -1 + 2 cos x। ओके, 2 इज कांस्टेंट एंड sin x को cos x हो जाएगा। देन you need to put it equal to 0. When you will put it equal to 0, then you will get cos x is equal to 1/2. जब आपको cos x 1/2 मिल चुका है, सो अब आपको इसकी जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं x की, वो आपको निकालना है। और वो आपने 11th में जनरल सॉल्यूशन पढ़ा हुआ है कि जब cos x is equal to cos अल्फा होता है, cos x इज इक्वल टू cos अल्फा का फॉर्म होता है, तो x इज इक्वल टू जनरल सॉल्यूशन होता है 2n पाई ± अल्फा। सो यहां पर हम अल्फा देख लेते हैं। 1/2 जो है वो cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है, cos 60 डिग्री की वैल्यू, सो इट विल बी cos x इज इक्वल टू cos π/3, यानी आपका अल्फा क्या हो जाएगा, π/3 हो जाएगा। तो उससे जनरल सॉल्यूशन जो आपको मिलेगा वो x इज इक्वल टू 2n पाई ± π/3 मिलेगा। अब हम पॉसिबल वैल्यूज देख लेते हैं x की, कि अगर ये 2n पाई ± π/3 है, तो इस क्लास इंटरवल 0 to 2 पाई के बीच में कितनी वैल्यूज आ सकती हैं x की। तो आप देखिए, व्हेन यू विल पुट n इज इक्वल टू 0 हियर, सो दिस होल वैल्यू विल बी 0 एंड देन ओनली π/3 you will get.
सो एक वैल्यू तो आपकी हो गई जब आपने n इज इक्वल टू 0 पुट किया तो आपको x इज इक्वल टू π/3 मिला। अब जब आप यहां पर n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो इट विल बी 2π प्लस माइनस π/3। जब आप एक बार प्लस साइन लेते हैं तो 3 2 जा 6 प्लस 1 7, इट विल बी 7π/3। और 7π/3 आप देखिए 2π से ग्रेटर हो जाएगा और हमारा जो क्लास इंटरवल है वो है 0 to 2π। तो यहां पर 7π/3 हम नहीं ले सकते क्योंकि ये 2π से ग्रेटर हो जाएगा। सो since it is greater than 2π, therefore it will not be applicable for this question. And when you will take 2π minus π/3, okay, so it will be 5π/3 और ये 5π/3 2π से it is less than 2π, so हम ये ले सकते हैं। so यहाँ पर आपको x की दो वैल्यूज मिली हैं, x इज इक्वल टू π/3 एंड 5π/3। सो ये दो आपको एक्सट्रीम पॉइंट्स मिल चुके हैं। ओके ना, अब आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से कर रहे हैं तो अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको नेक्स्ट स्टेप में ये जो आपको एक्सट्रीम पॉइंट्स या क्रिटिकल पॉइंट्स मिले हैं इसको f"x में रखना है। सो फर्स्ट यू नीड टू कैलकुलेट f"x। सो सिंस माई f"x इज -1 + 2 cos x, so that's why f"x will be -1 will be 0 and then +2 is constant and cos x will be minus sin x, so it will be -2 sin x. Okay, it is the value of f"x. Now what is the next step? That we have to put these extreme points in f"x. So f"x की वैल्यू x इज इक्वल टू π/3 पर देखना है हमें, तो वो क्या हो जाएगी -2 sin π/3। और sin π/3 क्या होता है, sin π/3 मीन sin 60 एंड sin 60 इज √3/2, so that 2 cancel out, it will be -3 और -3 निगेटिव वैल्यू है and negative people have maximum problem in life, so it will be point of maxima हो जाएगा। ठीक है, x is equal to π/3 will be point of maxima and then f"x की वैल्यू x is equal to 5π/3 पर निकालिए, so it will be -2 sin 5π/3। अब आप देखिए जब आप 5π/3 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे सो sin 5π/3 कितना होगा वो चेक करने के लिए आप देखिए इस 5π/3 को हम 6π minus π/3 लिख सकते हैं, फिर इट विल बी 2π minus π/3, राइट। अब ये जो 2π minus π/3 है, यहां देखिए हमने ऊपर भी कैलकुलेट किया था 2π minus π/3 को। सो 2π minus π/3 जब आप कैलकुलेट करेंगे सो इट विल बी 2π एंड देन समथिंग इज माइनस ऑन दैट। सो 2π में से कुछ माइनस हुआ मीन्स ऑल शुगर टी कप कॉस एंड सेक प्लस बाकी सभी माइनस। सो कॉस और सेक प्लस बाकी सभी माइनस, मतलब ये इसकी वैल्यू आएगी साइन π/3 वो भी पॉजिटिव, सॉरी निगेटिव। ये कॉस और सेक प्लस बाकी सभी माइनस, जबकि यहां पर क्या है साइन है और 2π है इसलिए रेशो चेंज नहीं होगा। सो इसकी जो वैल्यू होगी ठीक है वो होगी -2 इंटू -√3/2। सो ये हो जाएगी +√3 एंड +√3 इज ग्रेटर देन 0, दैट्स वाई पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा। सो हमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा दोनों मिल चुके हैं।
अब जब पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिल चुके हैं तो अब हम मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं. ठीक है. सो वी विल राइट दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन की वैल्यू है माइनस एक्स प्लस 2 sin x. Since x is equal to pi by 3 is point of maxima, therefore f of pi by 3 is equal to minus pi by 3 plus 2 sin pi by 3. So minus pi by 3 plus 2 into root 3 by 2. So it will be root 3 minus pi by 3. It is maximum local value या local maximum value. Okay. And since x is equal to 5 pi by 3 is point of minima, therefore f of 5 pi by 3 is equal to minus 5 pi by 3 plus 2 into sin 5 pi by 3. और sin 5 pi by 3 की वैल्यू आपने देखी अभी, इससे पहले हम लोगों ने कैलकुलेट की थी और वो वैल्यू आई थी माइनस रूट 3 बाय 2. ओके, so that 2 is cancelled out with 2, so it will be minus 5 pi by 3 minus root 3. So it will be the minimum value. So local minimum value. Okay, now the question is over.